Good evening, everyone. A very warm welcome to all respected guest speaker and your participants. My name is Payal Tiwari, and I will be your host for today's session. This webinar is proudly organized by Vidhi Ekta Sangh. It is a student-centric organization the law student. This organization serves as a platform for legal learning, professional growth, and unity among aspiring legal professionals. Through initiatives such as webinar, discussion, and academic instructions, Vidhi Ekta Sangh strive to bridge the gap between legal education and practice exposure. On the behalf of Vidhi Ekta Sangh, I feel honored to welcome you all for today's live webinar on law career. We are extremely happy to see such an enthusiastic response from law students, young advocates, and legal professionals from different places. Today's topic for this session is from law student to courtroom lawyer and about their practical skills and confidence for a successful legal career. And this topic is relevant especially for law students who often wonder how to move from classroom learning to courtroom practice and what practical skills are actually required in real legal field, and also about how to build confidence in while drafting, arguing, and appearing before the court. Today's session is designed to answer all these questions and provide real world guidance. Before I begin, I would like briefly mention few instructions to all participants that please keep your microphone muted during this session, and there will be a question and answer session at the end. You can put your questions in the chat box, and please kindly stay till the end so that you can gain maximum benefit from this session. Now, it's my privilege to introduce our esteemed speaker for today. We have with us Advocate Aliza Ali Zannat ma'am, an Thank you. accomplished litigator, a celebrated public speaker, and a distinguished public author. Welcome, ma'am. Thank you She's so an much, Payal. Yes, she's an accomplished advocate with a deserved practice in litigation, legal advocacy, with extensive experience across civil, commercial, constitutional, criminal, matrimonial, consumer, intellectual property, and also insolvency matters. She argued before various courts and tribunals, including the district courts, tribunals forums, and the Honorable Delhi High Court, and also assisted in high stakes matter before the Honorable Supreme Court of India alongside senior counsels. Beyond litigation, our speaker brings deep expertise in drafting, reviewing commercial contract, partnership agreement, vendor agreements, and regularly advise individuals, startups, and small businesses on compliance, legal risk management, and dispute resolution. She is a complete whole knowledgeable person and knowing for securing favorable outcomes through a conciliation through conciliation mediation. She is respected for delivering practical and result oriented legal solution, and now her journey and expertise make her the perfect person to guide us on the transition from a law student to courtroom lawyer. Without taking much time, I would now like to invite Advocate Aliza Ali Zannat ma'am to take over the session and enlighten with us her valuable insight. Ma'am, the virtual stage is all yours now. First of all, before I begin, I first want to thank Vidhi Ekta Sangh for this opportunity. I'm really humbled to be here. And Payal, to you, I think itni humble आपने मेरी introduction दी है. So thank you so much for that. And I'm really glad to be here. And anything for the law fraternity, anything for the law students. So मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो आई डू फील दैट आपको ये सेशन में काफ़ी कुछ आई थिंक शेयर करने को या समझने को मिलेगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर. Thank you, ma'am. सो लेट्स आई थिंक यू इफ यू हैव anything to go ahead, then we'll take it forward from there. No, ma'am, just start now, ma'am, please. It is all yours now. वेल अगर मुझे ही स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन करा है दे आर मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स, यंग लॉयर्स, एंड स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम नॉन लॉ बैकग्राउंड. अगर आप फर्स्ट अपने फैमिली में पहले लॉयर हैं या लॉ स्टूडेंट हैं देन आई थिंक इट बिकम्स रियली ओवरवेलमिंग बिकॉज
it's a very tight knit profession first of all. So and a lot of things, yes, you can find it online, लेकिन जब तक आपको practical exposure नहीं मिलता है, you do feel very overwhelmed. आपको समझ नहीं आता है कि अरे मतलब आप कभी जाते हो कोर्ट में तो आपको लगता है कि कोई सीनियर इतने अच्छे से आर्ग्यू कर रहा है. You see the offices, you see chambers, and you feel intimidated at times because you don't know कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप शायद किसी ऐसे इंसान से मिलो जो शायद आपके बैचमेट हो, लेकिन उनके फादर शायद लॉयर हो सकते हैं या उनके फैमिली में कोई लॉ हो सकता है. एंड अगेन, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग कॉन्डिसेंडिंग हियर. उनका अपना प्रिविलेज है विच इज ओके. लेकिन अगर मैं अपने लिए बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि द फैक्ट दैट जब आप खुद से अपना कुछ बिल्ड करते हो ना, फिर जो जो आपको कॉन्फिडेंस आता है वो इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. मतलब आप समझ रहे हो कि आपने खुद से अपनी एक लेगेसी बनाई है या आप अपने से मेहनत करके कर रहे हो, फिर वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है. बिकॉज अगर आप खुद से करते हो फिर मतलब इमेजिन दैट हाउ पावरफुल इट इज कि यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन. So I think that's something that you should be really proud, whether you're a law student, whether you're a lawyer, young lawyer, और या फिर किसी भी प्रोफेशन में अगर आप सब कुछ पहली दफा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक वो बहुत ही प्राउड होने वाली बात है और आपको खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए. And now, secondly, what I'd like to say is that how the journey happened from being a law student to being a lawyer. So आप जब लॉ स्कूल में जाते हो, whether you are going for a 5 year course or you're going for a 3 year course, things are very conducive. आपको एक प्रैक्टिकल बॉक्सेस में चीजें बताई जाती हैं कि ये 5 साल के कोर्स में आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, you'll do certain number of things, and everything is very planned and it's very theory based. Well, I mean, at least that's what I started my college in 2016. तो एटलीस्ट हमारा आई डू फील कि अभी चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, लेकिन पहले इट वॉज वेरी थ्योरी बेस्ड. एंड आपको लगता है कि एंड इनफैक्ट कॉलेज encourages you to write when you're giving exams, taking exams. They expect you to write long answers. But when you go to court, long answers and long arguments, that's not something that is the reality. Because एक बेंच के पास 1,000 मैटर्स होते हैं एक दिन में, एंड यू लिटरली हैव a very short amount of time to convince the judge to listen to you. So the thing is that all these what do you call it, web series, they have glamorized legal so much कि हमें लगता है अरे तारीख पे तारीख हम ऐसे बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, which is not exactly how it happens in real life of court exposure. So I do feel that yes, colleges tell you to start internships, कि आप internships करो. But what I have noticed, and that's something I also somewhere did it, that we get too focused as law students in like collecting certificates. हमें लगता है कि let's keep on doing internships, certificates collect करते हैं and that will help. But that's not the case, because अगर आप सिर्फ certificates collect कर रहे हो तो आपको दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा है. तो that's not healthy, that's not how it should be. You should definitely do internships, लेकिन उस internship से आप सीख क्या रहे हो वो बहुत important है. And I think first year से ही आपको कर देना चाहिए. It's not that you should wait. Just one second. You shouldn't be waiting कि मैं 5th year में ही करूँगा या मैं उसी टाइम पे आई डू इट, ऐसा नहीं करना चाहिए. बिकॉज हाँ, हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल टू ओवरवेल्म्ड कि मतलब बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन आपको करना क्या है, दैट व्हेन यू गो टू द कोर्ट यू शुड सिट देयर एंड आपको देखना चाहिए, सिर्फ देखो कि वहां पे हो क्या रहा है. एंड आई ऑलवेज रेकमेंड ज्वाइनिंग a litigator, somebody who's practicing law. Law firms are great, lekin I think once you develop a knack for a particular area in law, that's when if you're interested in corporate law, go ahead, please do that. But I think that real flavor of law comes when you actually join litigation. That's the real feeling, because आपको समझना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं. Yes, of course, I mean, you have to first be clear about why you're doing this, because it's a very noble profession, and it'll give you confidence, it'll give you stature, it'll give you a lot of respect, and of course money. But आपको थोड़ा सा क्लियरिटी अपने दिमाग में लानी पड़ेगी कि आप ये क्यों कर रहे हैं.
सो हेंस आई सेड कि आप बस ये नहीं कि हमें ठीक है कॉलेज वालों ने बोल दिया हम बस कर रहे हैं ये वो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड सिर्फ ये भी नहीं होता है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो आप पढ़ रहे हैं दैट्स नॉट रियली व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट इन रियल लाइफ। एंड especially when I do feel like a lot of law students and even young lawyers जिनको शायद एक साल होता है या समथिंग, मैंने एक चीज नोटिस की है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सीनियर आपको भेज देते हैं कोर्ट में कि यू नो गो एंड डोंट डू एनीथिंग, जस्ट टेक एडजर्नमेंट ही तुम ले लो। सो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप यू गो देयर, द सीनियर हैज गिवन यू द फाइल, बट यू थिंक दैट ओके मेरा क्या काम है, यू डोंट रीड द फाइल एंड यू जस्ट गो बिफोर द कोर्ट। एंड आई डू सी दिस हैपनिंग, ये होता है। एंड आपको कुछ पता ही नहीं है। नाउ सी द bench over there, the judge, he can clearly figure it out that you're a I mean you're a junior who is here for the first time, and sometimes they like to grill you, and they might just end up asking you, okay, tell me something about it. They might just end up asking you something. Now imagine you have absolutely no idea that what exactly is happening with this case, what's the stage. You don't know anything except the title, and that's not something how you should be doing things, and ये चीज आपको लॉ स्कूल में नहीं बताते हैं। एंड अगर आपको कोई ऐसा सीनियर मिल जाए जो आपको ये चीजें सिखा रहा है, देन आई थिंक यू आर वेरी लकी। बट ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू द कोर्ट and let's say your senior is telling you, whether or not they tell you that you have to argue or you have to do the briefing, it is very important that you read the file. एंड ऑल्सो एक बोनस टिप है जो मैं दूंगी कि आप जाकर प्रीवियस ऑर्डर्स भी पढ़ो कि प्रीवियस ऑर्डर्स में क्या हुआ था, बिकॉज दैट इज फॉरगेट एनीथिंग, इट्स अबाउट फॉर योर नॉलेज कि आप समझोगे चीजें। एंड लेट्स से इफ द जज ends up asking you things, at least you will have something, right? आपके पास कोई backing होगा कि ठीक है I am prepared, because you can read everything, you can memorize all the sections, but you still don't know that once you get into practice, you cannot decide what kind of clients are coming to you. It's something which is वेरी लाइक नॉट वेरी श्योर, कोई भी आ सकता है। अगर आप ये बोलोगे कि हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, हमने तो फैमिली लॉ बहुत पढ़ लिया था, बट अगर कोई और बंदा आ गया आपके पास किसी भी और तरीके का केस लेके, तो फिर आप क्या करोगे? तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन कोर्ट ऑल्सो। यू कुड बी reading the whole file, but you should always have that ability to be very quick to think on the feet सोचने का। you should have that capability। and अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो इसको स्टेज फियर है, जिसे सामने बोलने से डर लगता है, देन आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग इज दैट यू कैन लर्न द बुक्स, यू कैन गेट इनटू लॉ स्कूल, लेकिन वो कॉन्फिडेंस वो आपको खुद से करना पड़ेगा। वो आपको कोई सिखाएगा नहीं, वो आपको आपके ऑब्जर्वेशन से, एंड इट कम्स फ्रॉम विद इन। If you really want to be in this profession, if you want to become a lawyer, you want to become a successful lawyer, you go and see and study all the successful lawyers in the country. They speak so well, the way they talk, you want to listen। जब वो बात करते हैं तो आपकी प्रेजेंस ही ऐसी होनी चाहिए कि जब आप कुछ बोल रहे हैं तो लोग आपको सुनना चाहें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ दैट्स नॉट हैपनिंग, बिकॉज there's so many things happening in the court, like why would anybody listen to you? And forget that, why would a client come to you if you can't even speak properly? If you can't convince your client, so I mean what's the point? So I think confidence is the most important thing, and also your personality. Like अगर आप lawyer बन गए हो और आप एकदम ऐसे बैठे हो, your body language is like not like you know strong, तो वो कैसा प्रोजेक्ट करेगा आपके ऊपर? और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको अगर बता दिया जाता है तो दैट्स ग्रेट, बट नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू टेल यू दैट लुक पायल, यू नीड टू you know have a good posture, you need to be strong, you need to be confident, and especially as a first generation lawyer, now the thing is that you don't know anything. Who's going to tell you? Who's going to groom you? And they tell you that just because you know all the sections, you know all the case laws, but you still don't know how to articulate yourself, what good is that memory? What good is that knowledge? So knowledge is important, but these practical skills to be able to communicate, to be able to simplify things, and also ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, then you're talking in very complex terms.
नाउ द क्लाइंट इज लाइक, वो कैसे समझेगा कि आप क्या बात कर रहे हो? So I do feel like these are few things which are very important, and हर लॉ स्टूडेंट को या फिर किसी भी यंग लॉयर को ये डेफिनेटली करना चाहिए। मैम जैसे कि मैं एक क्वेश्चन मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। बिल्कुल। एक्चुअली आई एम ऑल्सो लॉ स्टूडेंट एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इंटर्नशिप एट बॉम्बे हाई कोर्ट। हम्म। जैसे मैम एक तो स्टार्टिंग लॉयर होते हैं जिन्होंने अभी लिटिगेशन स्टार्ट किया होता है, उन पे हम्म। रहता है कि वो पेशेंस नहीं रहता है कि हमको भी अब हम लॉयर बन गए हैं तो हमको सक्सेसफुल चाहिए, सक्सेसफुल होना है। उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, तो इसमें मतलब हमें पेशेंस रखना कितना इम्पोर्टेंट है। जस्ट आई वांट टू नो दैट कि पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जैसे अभी हम लोग नए जनरेशन है तो हमको सक्सेसफुल होना बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, हमको जल्दी जल्दी सब चीजें चाहिए रहती हैं कि हम्म। जैसे हम जल्दी हमें जल्दी इनकम्स मिले, हम जल्दी सीख जाएं, हम जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसा तो मतलब हमारे फील्ड में इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस मैम, प्लीज एक बार ये वेरीफाई कर दीजिए। ये तो यू हैव आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ये चाहोगे कि आप अब आपने 5 साल पढ़ लिया और अभी छूटते ही आपको बिल्कुल ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, मतलब होता भी है वैसे, एक्सेप्शंस आर देयर, ओके, कि कोई ऐसा एक केस ही क्लिक हो जाए विद इन 1 year ऑफ योर प्रैक्टिस, यू नेवर नो। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये तो है। आई फर्मली बिलीव दैट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, कि दुनिया एक तरफ होनी चाहिए और आपको अपने अंदर बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव करोगे। तो पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि सीनियर आपको हर चीज बताए या फिर आपको कॉलेज में सब कुछ पता चले, वो नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू नीड टू ओपन योर ब्लाइंडर्स एंड सी कि क्या चीजें कैसी हो रही है, कि अगर आप अपने सीनियर के साथ जा रहे हैं तो वो कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो अपनी चीजों को ड्राफ्ट कैसे कर रहे हैं। Everything you need to have that eye for detail, because that's a lawyer, a good lawyer is somebody who listens and even observes कि हो क्या रहा है उसके आसपास। सो पेशेंस एंड वो चीज ना, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब इट्स टू मच, यार अब थक गए, मतलब अब नहीं हो रहा, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड देर विल बी टाइम्स, अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं नहीं यू विल हैव अ ब्लास्ट, यू विल हैव एवरी डे विल बी लाइक दैट, बट नो, इट डजंट हैपन। देर विल बी डेज वेयर यू आर वर्किंग टिल 11 PM, ठीक है, आपने कुछ खाया नहीं है, ऐसे टाइम भी होता है, बिकॉज इट्स वेरी हेक्टिक। एंड दिस इज नॉट टू स्केयर यू और टू एनीबडी लिसनिंग टू दिस वेबिनार राइट नाउ, दिस इज टू प्रिपेयर यू दैट यू नीड टू बी फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, एंड यू शुड नो दैट yes, प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन आई विल राइज एंड आई विल डू दिस। एंड जस्ट नो दैट कि ठीक है, अब ये करना है, जैसे भी करना है, आई एम गोना डू इट, बट नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कि आपको कोई बोलेगा नहीं कि टाइम पे आना चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दैट लुक, if you want to be successful you need to have patience. Nobody is going to tell you all of these things, because अगर आपको लगता है कि ये ऐसा कोई करेगा तो nobody is going to do that. उन्हें क्या फर्क पड़ता है? This is your life, this is your dream, this is your passion. So don't give up and keep going. That's what I'll definitely say. थैंक यू मैम। और मैम जैसे कि हमें सीनियर्स, जो हमें सीनियर्स मिलते हैं, उनका कितना इम्पोर्टेंस रोल रहता है मैम हमारे लाइफ में, क्योंकि दे आर पिलर ऑफ आवर फ्यूचर एंड वो हमें Mm-hmm. इंक्रीज करते हैं और हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के ही अच्छे से सक्सेसफुल फील्ड में जाते हैं अपनी फील्ड में। तो मैम सीनियर्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारे फील्ड में? ओके। और मुझे तो लग हम्म अब क्योंकि बोलो। मैम हमारा जो फील्ड है उसमें सीनियर्स जो हैं, हम्म। अच्छे सीनियर्स भी बहुत हैं मैम, बहुत अच्छे हैं सीनियर्स भी हैं, बट प्रॉब्लम आती है जो मतलब गर्ल्स एडवोकेट या फिर गर्ल्स लॉयर और या फिर गर्ल्स लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए सीनियर चूज करना मैम बहुत प्रॉब्लम में आता है कि वो सीनियर्स नहीं समझ पाते, और सम ऑफ सीनियर्स आर नॉट गुड मैम इन दिस जनरेशन। हमें ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं कि सीनियर कैसे मिलेंगे, कैसे रहेंगे, वो कितना हमें सिखाएंगे, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, या फिर टाइम वेस्टेड तो नहीं है। इन सब के लिए मैम सीनियर्स हम्म। को लिए कैसे मतलब मैम इंसान मतलब कोई भी लॉ स्टूडेंट वो कंफर्मेशन ले सकता है कि हाँ आई गॉट द बेस्ट सीनियर एंड ऑल्सो आई गॉट हम्म। नॉट अ बेस्ट सीनियर ऑल्सो। मैम बस सीनियर का इम्पोर्टेंस मैम बता दीजिए एक बार।
एक मेंटोर होना और एक सीनियर या गुरु होना इस प्रोफेशन में इम्पोर्टेंट तो बहुत है। मैं ऐसा, हाँ, मैंने ये चीज़ें बोली हैं कि यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, बट हैविंग अ मेंटोर, somebody who can guide you, especially if you are somebody who's a first generation lawyer, it's very important that you need to have somebody to support you, to tell you कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। और अगर आप ये बोलते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा कि सीनियर कौन है कैसा है, तो स्पेशली एज अ वुमन, देन अच्छे इंसान और बुरे इंसान हर जगह होते हैं। देयर इज गुड एंड बैड एवरीवेयर, एंड यू विल फेस दैट डिफिकल्टी इवन while dealing with clients, if you are a woman especially. But does that mean that you'll stop doing what you're doing, you'll stop pursuing your dreams? Because ऐसा नहीं होता है। बट लेकिन अगेन आपको वो, जब आपके अंदर वंस यू बिकम अ लॉयर, एंड नॉट इवन अ लॉयर, बट जैसे ही आप ये जर्नी स्टार्ट कर देते हो एज अ लॉ स्टूडेंट, हम सबको लगता है कि हम जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हमारी जर्नी शुरू होगी, बट नो, दैट्स नॉट द केस। द मिनट यू स्टेप इन टू लॉ स्कूल, यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट आपकी जर्नी अब शुरू हो गई है। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टिल द टाइम यू एक्चुअली बिकम अ लॉयर, यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड, वो पूरा एक जर्नी है। आप उसको वहां से ही फर्स्ट डे से स्टार्ट करना शुरू कर दो, एंड यू स्टार्ट एनालाइजिंग पीपल। एक मुझे लगता है कि आपको इंसान को रीड करना आना चाहिए। सो इफ यू नो हाउ टू रीड समबडी, यू नेवर हैव अ प्रॉब्लम लाइक दैट। एंड गुड सीनियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने भी, आई हैव वर्कड, आई हैव डन इंटर्नशिप्स 5 साल, उसके बाद भी मैंने काम करा है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटोर्स एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी दैट आई एक्चुअली मेट वन लॉयर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मतलब उन्होंने लिटरली, जैसे आपको होता है ना कि चीजें हाथ पकड़ के समझाना, ही लिटरली डिड दैट। And then there were also some seniors who didn't tell me, they didn't say anything. उन्होंने, उनको बस था कि उन्होंने मुझे दे दिया, you do it, how you will do it I don't know. So हर सीनियर का अपना तरीका होता है समझाने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है या ये अच्छे हैं, दैट्स नॉट। बिकॉज अगर कोई आपको समझा रहा है, जैसे कि अभी इफ आई एम टेलिंग यू थिंग्स, आपको लगेगा कि ओ अच्छा, मैं अच्छा कर रही हूँ, बट अगर व्हाट इफ मैं आपको ग्रिल कर रही हूँ सो दैट आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आपको कभी टेंशन ना हो किसी भी चीज की। तो सबका अपना एक अलग अप्रोच होता है। सो देर इज नथिंग लाइक being good or bad, but you should always keep your intuitions and your observation skills really strong, because आप जब इस प्रोफेशन में आओगे तो अप्स एंड डाउन्स तो मिलेंगे, लेकिन फिर तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, वहाँ हर जगह ये होता है। सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू शुड ऑलवेज नो कि अपना चीज को ना क्लियर रखना है, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने माइंड को क्लियर रखना है। एंड डोंट थिंक कि अच्छा शॉर्ट टर्म सक्सेस, शॉर्ट टर्म मनी, ये सब के चक्कर में कभी भी कुछ ऐसा मत करना, बिकॉज यू कैन, आप बाद में उसको रिग्रेट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिकॉज इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड योर फेस वैल्यू इट मैटर्स, बिकॉज व्हेन यू गो टू द कोर्ट, द बेंच रिमेंबर्स यू, एंड दिस फ्रेटर्निटी, इसमें बहुत ही ब्रदरहुड भी है। बिकॉज अगर आप एक अच्छे लॉयर बन जाते हो, यूर अ गुड पर्सन, आपको सपोर्ट मिलेगा। सो just don't compromise and end up doing something for an overnight success for some money. Don't do anything wrong. Always maintain your dignity, and yeah, that's all I'd like to say to that. Ma'am, I have also a question. As a law student, what practical skills should I start developing today so that I am courtroom ready from day of practice? Just I want to know Okay. what just I want to know what professional study I should start from today developing my practical skills. Again, because it's a very interesting question, and I'm glad you're asking this, because if I tell you that पायल आप ये बुक पढ़ लीजिए या फिर ये बैरक पढ़ लीजिए, तो वो तो आप ऑलरेडी यू आर डूइंग एज अ लॉ स्टूडेंट, एंड वंस यू बिकम अ लॉयर यू हैव टू स्टडी, एंड यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैटर्स यू विल गेट। सो वो तो पढ़ना तो आपको है ही। लेकिन जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेशन कहा, दैट कॉन्फिडेंस, अब आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा किसी से बात करने में हेजिटेशन होती है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हैक जो कि मैं आज बताऊंगी, विच इज लाइक अ की टेक अवे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड यू।
दैट आप एक अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं, विच इज दैट यू कैन पिक अप एनी बुक और न्यूज पेपर और वट एवर. You go in front of the mirror and you start, saying it, you read it. एंड जब आप खुद को वो देखो, एंड अगर पॉसिबल है तो खुद को रिकॉर्ड भी करो कि आप वो चीज कैसे कर रहे हो. बिकॉज वंस यू आर एबल टू स्पीक क्लियरली, यू हैव दैट क्लैरिटी. बिकॉज कोर्ट में जाके अगर आप फंबल करोगे, आपको डर लगेगा. बिकॉज एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, द बेस्ट ऑफ सीनियर्स, दैट कोर्ट रूम फियर इज रियल. इवन मैं भी आज भी, इफ आई गो, that 1 minute of nervousness you have, because you are standing in front of the bench, there are so many people behind you, and you do feel scared. Not scared, but I'd say nervous for that few seconds. And once you start and if you're prepared, वो तो है. लेकिन that hesitation, अब कुछ लोग होते हैं जो naturally बहुत skilled या equipped होते हैं, जिनको वो already ही confident या outspoken होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ा introvert होते हैं. तो आपको पहली बात तो परवाह नहीं करनी चाहिए कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहे हैं. If you keep thinking what others are saying, then you will not be able to become a good lawyer, because you'll hear a lot of things. Sometimes there will be days your client is upset. Maybe you might not get a favorable order from the court. So you can't let that affect you so much. So you need to be thick skinned. So that this is one first rule: be thick skinned. Don't be super sensitive about it. Number two, always read everything. Whatever file, like I said, previous order or whatever that you're given, whether or not, even if you're senior, if he or she is not telling you to read it, you still take the effort and read and make notes. Okay, make sure you do that. And always go and see that don't take any work as small or big. Clerical काम भी करना आपको आना चाहिए. You should know how to file, you should know how to do drafting, you should know how to read a file also. There is a process of reading the file also, कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, कि ये नहीं आप बस उसको बुक की तरह पढ़ें, ये नहीं करना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड योर पर्सनैलिटी and how you show up. Like, you should never go to in front of a bench looking like very closed or not feeling confident. तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए. एंड आई डू फील दैट अगर आप इन चीजों को कोऑपरेट करेंगे अपने पर्सनालिटी में, देन nobody can stop you and the sky is the limit. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I have a question from you. Uh, Hmm. just ma'am, please tell our participants then how did you build confidence for your first few courts appearance, and how Hmm. can students overcome fear of speaking before judges? Because there is a major question, sir, मैम, जो लोगों को लगता हो कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. एंड प्लीज आप हम लोग को बताइए हाउ डिड यू बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर योर फर्स्ट फ्यू कोर्स अपीयरेंस. I'll tell you a very interesting thing. So, मैंने public speaking, I think I'm doing it since the age of 4. So, स्टेज फियर तो एज सच मुझे नहीं था. लेकिन जब मेरा फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज अपियरिंग, आई वाज वेरी नर्वस. बिकॉज एंड आई वाज सरप्राइज कि मेरे जैसा इंसान, अगर मुझे स्टेज फियर नहीं है तो मैं नर्वस क्यों फील कर रही हूँ. तो दैट्स समथिंग दैट द बेस्ट ऑफ पीपल, द बेस्ट ऑफ लॉयर्स, they can be scared and they can be nervous, and it's a very natural thing. उसके वजह से आपको ये नहीं फील होना चाहिए that you're not good enough, या उस चीज से आप खुद को नीचा मत फील करो. It's very normal, it's a very human thing. I also felt it. And in fact, every day whenever you're going before the court, you will have that feeling, that few seconds of butterfly in the stomach, which is very normal. लेकिन अगर आप prepared हैं, you know 100% any kind of possibility, whether positive or negative, अगर आपको पता है तो आपको ना उतनी नर्वसनेस फील नहीं होगी. बिकॉज आई थिंक दिस, आई रिमेंबर दिस, आई थिंक आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ माय लॉ स्कूल एंड आई वाज इंटर्निंग. एंड मुझे एक रिसर्च करने के लिए दिया गया था, एंड आई वाज वर्किंग. तो मैंने जो रिसर्च करा था, तो मुझे उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही कुछ केस लॉ मिल गया. So my senior back then, I got really upset that I thought कि मतलब ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया है. And it was just like my second or third day of internship. So I thought that अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी. But something very great happened that day, because my senior back then, he said that you shouldn't be, why are you so sad about this? Because
आपको अब ये पता चल गया है कि सामने से अगर आपको कुछ ऑपोजिशन आती है तो आप वो भी प्रिपेयर्ड हो, राइट? कि आपको पता है कि हाउ विल यू कोप अप इफ समथिंग गोज साउथ. So even sometimes even negative things that can also be a very good teacher. So I think, yeah, that's pretty much it. And I hope that this helps. Ma'am, please mention about your daily habit routines helped you grow faster your early years as an advocate. What was the ma'am? What was your habit and routines, ma'am? Please, ma'am, mention. See, nothing was given to me on a silver platter. As a first generation lawyer, I think, and this is not to sound, I'm not trying to glorify myself or anything, but I think जो हर एक लॉयर, वैसे फर्स्ट जनरेशन क्या है, मुझे लगता है हर लॉयर जब बिगिन अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो हार्ड वर्क इज द की. इफ यू थिंक कि आपको बैठे बैठे सब चीजें मिल जाएंगी तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. वाइल मेरे जो पीयर थे वो लोग नहीं कर रहे थे, बट मुझे था कि नहीं, मुझे बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से ही करना है. तो आपके अंदर वो जब तक, आई थिंक दैट वाज दैट zeal and zest that I want to prove myself. I want to build something of my own. तो ये मैंने वो डिटर्मिनेशन अपने अंदर कभी भी खत्म नहीं होने दी. एंड आई थिंक I kept on going and going, and there were times when I used to like question myself also that am I doing it right? Because sometimes I would be so exhausted that I was working on Sundays. There were times when I was having my first meal at 6 p.m. and तब मुझे लगता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ? Why am I doing this? And I wanted to quit. But then again, I just kept reminding myself that this is my dream. तो मुझे अगर ये करना है तो आई शुड बी focused and I should keep on going. लेकिन हाँ, इसका एक caveat ये भी है कि you should not, I'm not glorifying burnout. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप खुद का बिल्कुल भी ध्यान मत रखो, because that's not right. uh, but yes, hard work is the key. There is no shortcut to success. You need to have that determination. And हाँ, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक दिन में आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज यू माइट बी एट वन कोर्ट एंड देन यू हैव टू गो टू अनदर कोर्ट एंड देन यू हैव अ क्लाइंट मीटिंग, देन यू हैव टू ब्रीफ. दिस सो मच दैट इज हैपनिंग इन वन डे. तो आपको वो फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा. यू कांट एक्सपेक्ट दैट इट्स अ डेस्क जॉब, दैट आप अपना लैपटॉप लेके बैठोगे और आपका दिन खत्म हो जाएगा. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. सो यू नीड टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट आई बिलीव. एंड मुझे उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि ये दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना कि ठीक है, आई नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज मैं सुबह निकल रही हूँ घर से तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है. आई माइट हैव टू गो to this court, I might have to meet somebody new, I might have to go to a client or something. So mental preparation is very important, and also keeping yourself healthy. Don't skip your meals. Don't be like कि नहीं ठीक है, because फिर बाद में you later on pay the price if you ignore your health. So you need to be physically fit, mentally fit. मैंने थोड़ा सा अपने फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना बंद कर दिया था, बट इट वाज समथिंग आई लेटर ऑन रियलाइज दैट मुझे ये नहीं करना चाहिए. तो अगर आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. Oh, thank you, ma'am. Ma'am, one more question. And Yes. how can first generation lawyer build strong network and mentorship without family or legal background support, ma'am? Yeah, this is a, I feel like ये जो है ना question में I get it a lot, and it was something which I used to also wonder that if you don't know anybody, how will you cope up? Because of course you are expected to behave in a certain manner once you become an advocate. You have to obey the rules of that आप अपने आप को openly advertise नहीं कर सकते that your services, because that's not right. So that's when networking becomes your main thing. So I think what you can do is that always look for different conferences that are happening, events that are happening where legal minds are going there, because आपको जब आप जाओगे तो
you'll learn a lot of, first of all, of course you'll learn a lot of things. You will develop interpersonal skills की मतलब अगर आप जा रहे हो, and you should have that confidence कि I can go to a place where nobody knows me. बिकॉज अब आप जाओगे तो आप बहुत लोगों से मिलोगे, एंड जब आप नए लोगों से मिलते हो तो नई न्यू चीजें एंड अपॉर्चुनिटी आपके पास सामने आएगी. बिकॉज इफ यू एक्सपेक्ट दैट घर बैठे बैठे मैं नेटवर्किंग कर लूँ, so that's not how it works. या फिर मैं एक ऑनलाइन ही, I mean of course it's great if you are attending a webinar like that, but can you really beat the fact that if you and I were talking in person, तो उसको आप सोचो कि वो कितना इम्पैक्टफुल होता, rather than you and I talking right now over a screen. So I think वो एक interpersonal skill develop करना, because आप client से भी बात करोगे तो वो आपके सामने बैठा होगा एंड उसका क्या टेम्परामेंट है, ये है, आपको वो चीजें आनी चाहिए. सो नेटवर्किंग इज वेयर दिस कैन हेल्प यू. So any kind of conference that you can get your hands on, you should definitely go. You should not procrastinate कि नहीं मुझे क्या करना है. और फिर वैसे तो कुछ भी मतलब any kind of events like that, you should definitely go, because that becomes your key to expand yourself, because you have to understand that you have to become a brand of your own. You need to become that brand. आपको, yes, आपको सीनियर्स मिलेंगे, एंड आपको मिल भी जाए, आई होप दैट आपको अच्छे सीनियर्स मिले, लेकिन डाउन द लाइन you can't tell me that for 10 years or 15 years you'd like to become a junior to somebody. Is that what you want? Do you not want to build your own name, that somebody should come and say that okay, he or she is a great lawyer? So आप वो चीज कैसे करोगे? आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो कर पाओगे ना. So yeah, I think always be open to any kind of opportunity like that. मैम जैसे कि कुछ जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं वो कोर्ट रूम में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो दैट मिस्टेक्स जो वो करते हैं हमें वो किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, और क्या मिस्टेक्स हैं जो अभी यंग एडवोकेट्स करते हैं कोर्ट रूम में? एक तो मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था कि अगर आपको सीनियर भेज रहे हैं और आपको लगता है कि हमें तो बस एडजर्नमेंट के लिए भेज रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं जाके बस बोल दूं. बट वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. वेदर और नॉट योर सीनियर इज टेलिंग यू, you should be prepared, you should read the files, you should know what is going on. तो ये चीज अब आपको, मुझे अभी भी लगता है कि काफी लोग, काफी यंग लॉयर्स करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट रियली paints you in a bad way. मतलब कि a lawyer cannot be like that. You need to have that understanding कि अगर कल को आप खुद से अपना इंडिपेंडेंट केस लोगे तो क्या आप इतना लीनियंट बिहेव करोगे? नहीं, राइट? सो दिस इज योर ट्रेनिंग ग्राउंड. यू नीड टू बी इक्विप्ड लाइक दैट. एंड दूसरा, अगर लेट्स से कि आपसे कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, विच इज वेरी ह्यूमन, नो बडी इज देयर टू जज यू. द कोर्ट विल नॉट गो एंड मॉक यू दैट अरे तुमने तो मिस्टेक कर दिया. इट्स ओके इफ यू डू अ मिस्टेक, यू से सॉरी, यू अपोलोजाइज, एंड देन यू मूव ऑन. बिकॉज दैट, अगर आप ये सोचोगे बैठ के कि अरे मैंने तो बहुत गलती करी, तो फिर आगे अगर आप कुछ खुद को ठीक भी कर सकते हो तो आप वो भी खराब कर दोगे. सो आपको वो उस चीज को इतना दिमाग में लोगे तो नहीं हो पाएगा. सो यू नीड टू बी वेरी क्विक, बिकॉज नो बडी इज सिटिंग ओवर देयर एंड वेटिंग, ओके अब इसने तो मिस्टेक कर दिया, अब इसका मजाक बनाते हैं. ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एंड इफ यू डू, या आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कि अगर आप कुछ बिल्कुल ही अजीब ही कह दो जो रेलेवेंट ही नहीं है, तो उसके लिए तो आपको ग्रिल करा जा सकता है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई, कि आपने कुछ गलत पेज नंबर बोल दिया या समथिंग लाइक दैट, तो आपको नर्वस नहीं होना है. यू कैन say that okay, I'm sorry, this is Malad, I meant this and not this, and it's okay. So अगर जितना आप खुद को फील करोगे ना मेरे से गलती होगी, तो आगे का भी अगर कुछ बेटर करना होता तो आप वो भी खराब कर दोगे. सो डोंट डू दैट. I'd say this. एंड मैम जैसे कि आज अभी स्टूडेंट्स जो हैं, अभी आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं मैम बिटवीन लिटिगेशन, कॉर्पोरेट और जुडिशरी में. तो मैम व्हाट फ्रेमवर्क शुड वी यूज टू चूज द राइट करियर पाथ? बिकॉज मैम इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्रैक्टिस शुड वी focus more on learning under a senior or learning independently? How do we balance both, ma'am? जब आप लॉ को ज्वाइन करते हो, आपको मतलब शुरू शुरू में तो लगता है कि बस यही है एक चीज, बट ऐसा नहीं. लॉ इज वेरी वास्ट, इट हैज डिफरेंट फैसेट्स. मतलब इतना कुछ है दैट आप
अभी भी लगता है कि अच्छा ये भी होता है, दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस मीडिया, दिस सो मच दैट यू कैन डू एज अ लॉयर। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि फर्स्ट ईयर में ही बिल्कुल आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन आप अपना माइंड ओपन रख सकते हो। सो अगर आपको ये जो आपको कॉलेज में 5 साल या 3 साल जो मिलते हैं, इसमें इंटर्नशिप करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप डिफरेंट फैसेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स से यू आर डूइंग अ 5 ईयर इंटर्नशिप, सॉरी 5 ईयर लॉ स्कूल। अब आप अपने फर्स्ट ईयर में किसी लिटिगेशन चेम्बर में चले जाओ, तो आपको वहाँ पे लिटिगेशन का काम समझ आएगा। सेकेंड ईयर में आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो कि कुछ और काम कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा कि ओके दिस इज व्हाट, एंड देन नेचुरली आपको बाय दैट टाइम, आई थिंक बाय द टाइम यू गेट टू थर्ड ईयर, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ओके मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। ये तो हमें स्कूल में भी हम करते आए, राइट, कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू लव मैथ्स और यू लाइक हिस्ट्री। तो वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन यू डेवलप एंड दैट हैपेंस, इट्स वेरी नेचुरल। सो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द लॉ एंड यू स्टार्ट गोइंग टू इंटर्नशिप्स, आपको वो एक्सपोजर मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है मुझे। या फिर लेट्स से जुडिशरी ऑल्सो, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये इन चीजों में बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, आई एम वेरी गुड एट लर्निंग, आई एम वेरी गुड एट यू नो डूइंग थिंग्स, सो मे बी आप नेचुरली यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। बट इफ यू टेल मी कि आप इंटर्नशिप बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हो कि इंटर्नशिप में हम सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लेते हैं, उसको लैमिनेट करके रखेंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी यूज करना, बिकॉज वो गोल्डन टाइम होता है टू एक्सप्लोर, बिकॉज वंस यू बिकम अ लॉयर देन यू फील कि अच्छा अब मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं यहाँ चली जाती हूँ, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता है। दैट्स नॉट द टाइम टू एक्सप्लोर, दैट्स द टाइम टू पिक अप योर फेवरेट नीश एंड देन गो फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही रिजिड हो जाना चाहिए कि नहीं मैं मुझे बस यही करना है। आपको तब भी थोड़ा सा ओपन रहना पड़ेगा कि आपको चीजें आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव दैट टाइम। बिकॉज इफ यू टेल मी कि आफ्टर बिकमिंग अ लॉयर देन मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यूज योर लॉ स्कूल जर्नी वाइजली एंड इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड। मैं ये भी बोलूंगी कि ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होना है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन टाइम होता है व्हेन यू आर इन योर लॉ स्कूल, बिकॉज आफ्टर दैट there is going to be a lot of stress and tension anyway. So don't be very stressed. Enjoy your college life, but also know that this is an important phase. तो इसमें आपको जितना हो सके आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो। इफ योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग any moot court, any kind of activity, please 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 participate. Don't think that कि मैं तो बोल नहीं सकता या फिर आई एम हेजिटेटिंग, डोंट डू दैट, बिकॉज वो आपके यू देयर इज नथिंग टू लूज, आप कुछ सीखोगे ही। सो या आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। मैम व्हाट कॉमन आर मतलब इन दिस जनरेशन मैम, जो मतलब हाउ इम्पोर्टेंट आर ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च स्किल्स compared to oral arguments ma'am, and how can we systematically improve both? Very important, of course. It's a very important skill, and I'll answer it in two parts. You can a lawyer needs to know how to draft, आर्ग्यू करना भी आना चाहिए, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। एंड लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू कैन बी वेरी गुड एट ड्राफ्टिंग बट नॉट दैट गुड इन सबमिशंस एंड ओरल सबमिशंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक चीज खराब है या दूसरी चीज अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। बट एक चीज होती है कि जब आप ड्राफ्टिंग करने के लिए जाते हो, what you can do is that let's say you have joined a senior chamber, अब आपको उनकी फाइल्स दिख रही हैं, अब उन्होंने आपको बोल दिया कुछ कि एप्लीकेशन ड्राफ्ट करो, तो अब आप बैठ के सोचना तो कि हमें तो कुछ नहीं आता, तो द क्विकेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज पिक अप दैट फाइल, उसको आप पढ़ो, लैंग्वेज समझो, ठीक है, कि कैसे लैंग्वेज में लिखी है, एंड फॉर्मेट वगैरह तो चलो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज। ना कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम अगर कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करेंगे या फिर हम जो एक चीज को हम लिख सकते थे वन सेंटेंस में, हम उसको एक लंबा पैराग्राफ बना दे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छी ड्राफ्टिंग होगी। जरूरी नहीं है कि लेंदी ड्राफ्ट करना इज द राइट वे, बिकॉज इन लॉ स्कूल they tell you to write long answers, but that's not, it's not important कि वो सही हो। So you need to be able to simplify your drafting, and that's how you hone your skills. So
that's something that you can do. And I think orally तो आपको मैंने समझाया ही है कि आप कैसे अपने आप के आर्ग्यूमेंट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैंने आपको इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन तो बताया ही था. सो लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट वेरी गुड विद आर्ग्यूमेंट्स, देन यू कैन बी गुड एट ड्राफ्टिंग एंड दैट्स ग्रेट टू. बिकॉज बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है. आप बहुत कुछ, देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस फॉर यू देन ऑल्सो. सो ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, अगर मैं इसमें अच्छा हूं तो मैं इसमें ही करूंगा. और अगर नहीं हूं तो जस्ट ट्राई टू पुश योर सेल्फ कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब आप कर सकते हो. अगर आप लॉ स्कूल तक पहुंच गए हो तो आप ये भी कर सकते हो. सो डेफिनेटली आई थिंक आई विल से दैट. Ma'am, there is a question from our participants, Neha. उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है मैम. वो उनका क्वेश्चन ये है, इफ आई हैव ओनली 10 minutes बिफोर अ मैटर इज कॉल्ड, what should I look at first in the file? As a court intern, what should be prioritized? Observing argument, understanding procedure, or assisting with drafting? आई थिंक पहले तो डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी में जा रहे हो. मतलब अगर आप वैसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको सीनियर क्यों भेज रहे हैं. नॉर्मल कुछ है, लेकिन इधर वे यू शुड नो कि क्या हो रहा है. तो आई थिंक क्विकेस्ट, अगर सबसे क्विक ग्लांस अगर आपको समझना है तो आप लिस्ट ऑफ डेट्स पढ़ लो फाइल में. उससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ डेट्स इज वेरी क्रूशियल. उसमें आपको सारे सीक्वेंस में चीजें होती हैं जिसको आप पढ़ सकते हो. एंड यू कैन वेरी इजीली रिवाइज व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मैटर एंड यू कैन गो बिफोर द कोर्ट. एंड हाँ, ये भी प्रीवियस चीजें भी क्या है वो भी पढ़ लेना चाहिए. लेकिन अगर क्विक ग्लांस करना है तो आई थिंक लिस्ट ऑफ डेट्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. And ma'am, second question is from Aditi. Uh, uh, Being a first generation lawyer, I want to know that for drafting, whether this should intern under any advocate or either do an course. Either do what? Either do and course. Course. Okay. Yes, yes, yes. Um, I, that's a very thoughtful question. But if you are I mean, still in your law school, I think that it's better that you join a senior and you can read the files in real time. एंड वो जो आपको रियल फाइल्स पढ़ने को मिलेंगी वो आपको कोर्सेज में मे बी मिल जाए, बट वो रियल चीजें नहीं मिलेंगी. बट आई थिंक तो यू शुड जॉइन अ सीनियर एंड उनसे आप सीखो. अगर वो आपको सिखा दें तो, अगर वो आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रहे हैं तो दैट्स ग्रेट. बट अगर वो नहीं भी समझा रहे हैं तो आपके सामने जब वो रियल फाइल होगी ना तो आपको समझ आएगा कि ओके, दिस इज हाउ इट इज. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, जरूरी नहीं है कि हर लॉयर का ड्राफ्ट करने का लैंग्वेज भी अलग होता है. ये भी एक चीज है दैट डिफरेंट लॉयर्स ड्राफ्ट इन अ डिफरेंट मैनर. बट एक क्रक्स होता है जो आपको समझ आ जाता है कि ओके, दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ द फ्लो शुड बी. एंड वो आप समझ सकते हो इजीली एंड देन यू कैन लिटिल बिट चेंज इट इन योर लैंग्वेज, सिंप्लीफाई इट एंड देन यू कैन गो ऑन. सो courses are good. I'm not against it, but I do feel that practical exposure, because आप सीनियर के पास जाओगे तो आपको ड्राफ्टिंग के अलावा भी बहुत चीजें समझ आएंगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लाइंट मीटिंग हैपनिंग, यू कैन सिट देयर, यू कैन वॉच, लर्न कि वो कैसे बात कर रहे हैं, दैट इंटरपर्सनल स्किल्स. या फिर अगर वो कोर्ट जा रहे हैं तो वो आर्ग्यू कैसे कर रहे हैं, दैट टोनालिटी, दैट टोन. So you will learn a lot of things which in a course वो शायद limited हो जाएगा. So I'd encourage you to join senior. But otherwise, you still want to join a course, that's also great. But go to a senior first. You've muted yourself. You need to unmute. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ah, As we know, ma'am, you are an author also. So, yeah. ma'am, tell us something about your book because we are very excited to know. That's very sweet of you to ask. Well, I wanted to write this book. I mean, a book since I was, I don't know, 13, 14, I guess. So, when I started into law school journey, then वो बहुत ही hectic था. तो वो तो उस time पे possible नहीं था. But then finally I decided in 2024 that I want to write this book. So the book is basically a contemporary fiction novel, and which, by the way, I have right now next to me as well if you'd like to see.
So it's about it's a love story, but it comes with a lot of psychological aspects of human emotions. Because once you become a lawyer, आपको बहुत सारी human psychology भी समझ आती है कि आप बहुत तरीके से लोगों से मिलती हो. So I just felt like I had a lot to give to the world, and that's when I decided to write this book. And मुझे थोड़ा सा ये भी मिला कि how can a lawyer be writing a love story, but I think a lawyer is somebody who can do anything. तो मुझे तो लगता है कि अगर आप लोग के भी अलग कुछ इंटरेस्ट हैं तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट. एंड या, दैट्स ऑल. And ma'am, a question from Anshika. Her question is that I have a question that initially when we join law, we are very confused which law field to choose. We are very confused between civil law and criminal law. So I want to know what initially field we choose. See, law is very vast, like we discussed already. And it could be that you who might be interested in civil, but I could be interested in criminal. तो वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज इंटरेस्टेड इन एडीआर doesn't mean that you will also be interested. So it's really about your own inclination. But let's say that you are somebody, again, a first generation lawyer. तो मुझे तो लगता है कि आपको तो शुरू में तो बिल्कुल सब कुछ एक्सपोजर लेना चाहिए. आपको बिल्कुल शुरू के एटलीस्ट 3 साल मैं बोलूंगी एटलीस्ट आपको हर किस्म की केसेस का एक्सपीरियंस लेना चाहिए. हाँ, आपको इंटरेस्ट आ जाए, दैट्स ग्रेट. सो देयर इज नथिंग दैट समथिंग इज गुड और द अदर थिंग इज बैड. ऐसा नहीं होता है. आप अपना खुद से देखो कि एक एक ऐसा जरूर होगा लॉ में जो आपको फील लगेगा कि ये मैं बहुत ही इजीली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो दैट इज वॉट इट आई थिंक. लिसन टू योर इनर वॉइस. ऐसा जरूर होगा कि नेचुरली, या फिर ये भी हो सकता है कि नेचुरली आपको लगेगा कि आप ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छे हो लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पा रहे हो. पर कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, उनको ड्राफ्टिंग में इंटरेस्ट नहीं होता. सो इट्स रियली अबाउट वॉट यू फील. सो बट डोंट बी लाइक कि किसी ने मुझे बोल दिया है कि नहीं मुझे तो जुडिशरी जाना है या मुझे तो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट में जाना है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. बिकॉज इंटरेस्टिंगली इनफ for 5 years I just did corporate internships. मुझे लिटिगेशन तो था ही नहीं, मैं करने ही नहीं वाली थी. मतलब आई वॉज सो कन्विंस्ड कि मुझे मेरा एक ऑफर भी मिल गया था 4th ईयर में. एंड आई वॉज लाइक ओके, आई एम जॉइनिंग दिस लॉ फॉर्म. आई डोंट वांट टू बी अ लिटिगेशन, आई मीन लिटिगेटर. आई डोंट वांट टू डू दैट. सो इमेजिन. तो बिकॉज सबने मुझे बोला कि नहीं नहीं, इट्स वेरी टफ फॉर वुमन, डोंट डू ये वो. बट इन 5th ईयर आई वाज लाइक कि नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं. तो मैंने 5th ईयर में बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर में आई जॉइंड लिटिगेशन चेम्बर. एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. नाउ I mean, I can do. I mean, there is anything can happen. So you should always have that कि जरूरी नहीं कि जो आपको कोई बोल रहा है, मतलब ऑफ कोर्स उनकी बातें सुनो लेकिन खुद की भी सुनो कि आपको नेचुरली इंटरेस्ट क्या आ रहा है. बिकॉज मुझे नेचुरली इंटरेस्ट था. आई रियली वांटेड टू गो कि बिफोर द कोर्ट कि मैं अब बोलूं, मैं आर्ग्यू करूं. सो नेचुरली दैट हैपेंड. सो आई होप दिस हेल्प्स यू. Thank you, ma'am. And a question, also question, ma'am. Yes, yes, I can hear you. Uh, Sorry, ma'am. Just wait a second, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, yes. There's a little disturbance, but it's all right. Um, Ma'am, a question from Subhan. This question. Uh, as a lawyer, how can one overcome situation where senior only teach limited skills for their own benefit, and how to reduce the duration of being dependent as a junior? Mm. That's a very practical question and a very interesting question. But if you see, it's not about senior. तो ठीक है, आपने सवाल में पूछा है. बट लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है, आप किसी के ऊपर एकदम 100% डिपेंड हो जाओगे, तो दैट पर्सन हैज एन एडवांटेज टू टेक यू to the direction जिसके वो चाहे. He or she can use you in the way they want.
तो आपको वो चीज से थोड़ा सा अपना दिमाग को उस टाइम पे आपको यूज करना है, बिकॉज देर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन लर्न. एंड नो सीनियर, अगर अगर इफ यू आर वेरी लकी यू कैन एंड अप फाइंडिंग अ सीनियर हु विल टीच यू एवरीथिंग, बट नोबडी हैज दैट टाइम टू टीच यू एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड. कि अगर आपको वो बोलें कि नहीं आप ऐसे करो, ऐसे पढ़ना है, दिस इज व्हाट, nobody is going to do that. The only thing that you can do is that listen to them, see, observe कि वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं. और अगर और ये भी होता है ना कि I don't believe in working for like free or something in name of experience. मैं इसमें नहीं believe करती हूँ. So you should not let yourself be taken advantage in that sense, because um, आपने बहुत मेहनत करी है एंड यू डिजर्व दैट. स्पेशली बिकॉज कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर समबडी हु इज फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड यू कम टू दिल्ली टू प्रैक्टिस. तो आपको एक डिसेंट रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए कि यस आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, बट उसके नाम पे आपको खुद को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. एंड व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू इज दैट वेदर और नॉट यू वर्किंग विद अ सीनियर, एटलीस्ट कोर्ट जाओ आप, जो भी नियरेस्ट कोर्ट है, यू गो देयर एंड यू सिट, यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द कोर्ट. आपको उससे भी बहुत कुछ समझ आएगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे लॉयर्स आते हैं, दे ऑल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड यू लर्न सो मच कि बेंच कैसे अप्रोच करती है या कैसे बात करती है, या लॉ की कोई कोई लॉयर है तो वो कैसे बात कर रहा है. तो अगर चाहे आपके पास सीनियर हो या नहीं हो, इवन दैट ऑल्सो हेल्प्स. सो आई रियली रिकमेंड गोइंग टू द कोर्ट. एंड वहाँ ये भी नहीं है कि आप कोर्ट जा रहे हो और आप बैठ के अपना फोन यूज करो, प्लीज डोंट डू दैट. मतलब आप कोर्ट जाओ तो आप प्लीज वहां पे थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. एंड या आई थिंक दैट शुड हेल्प यू. Ma'am, last question from hers. His question is that how a law student earn money, maintain himself or herself after completing their law course during the practice in courts. Sorry, I didn't get the question. Can you say it again? Ma'am, how a law student earn money himself or herself after completing their law course during the practice in courts. I think if you don't plan to join litigation immediately, you can always uh, join a law firm, or you can join, let's say, there's something called legal journalism also. You can at least go there and draft some maybe contracts, or there are a lot of startups happening, so you can extend your services in that sense, and that can become a source of income for you. But ideally, don't really run after money unless it's a necessity for you. बिकॉज सिर्फ ये होना चाहिए कि अब तो बस मुझे पैसे ही बनाने हैं, मैं कुछ भी करे से करूँ, ये नहीं होना चाहिए. लेकिन आप जो अपने, जैसे बिल्कुल, जैसे लेट्स से आप बिल्कुल ही फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज होते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं. तो ये भी एक चैलेंज होता है कि आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप करोगे कैसे. बट स्टिल थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होती ही है कि आप समझ सकते हो, शायद थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर सकते हो या थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो. तो इन दैट केस आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गेट टू सीनियर, यू कैन ऑफर योर सर्विसेज, यू कैन हेल्प देम कि आई विल सिंप्लीफाई वर्क फॉर यू, आई डू द रिसर्च फॉर यू. So maybe that can become a source for you to generate some revenue for yourself. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, my personal question is that, uh, should I ask, ma'am? Uh, Yeah, Ma'am, my yeah. I question is was just that, thinking that we're running. We have. I think it's already 8, right? So it's okay. We'll take your question. just a last question. Yes, yes. If you had to start your legal career again as a student, Okay. if you had to start your legal career again as a student today, what three things would you do differently? Will I do it again? Yes, and differently, what you do differently? What Differently. would you do? Okay, Yes, differently. yes, yes. Okay. Wow, wow. That's a very, very interesting question. Um, I think.
मैंने जो अपनी कुछ सही डिसीजंस लिए हैं, कुछ गलत भी लिए थे, कुछ गलतियां भी करी हैं। सो इफ आई हैव टू गो बैक इन टाइम एंड तो मुझे लगता है मैं वापस से वही गलतियां करना चाहूंगी। वही मिस्टेक्स को मैं अपने पाथ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब इस प्रोफेशन में जाते हो तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस, देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, देर आर डेज वेर आई गॉट favorable orders and there were days when things didn't go the way I planned, but उसमें भी मुझे learning मिला। and there were days that मुझे मेरे senior ने grill किया, कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे बहुत appreciation मिली। तो वो जो चीजें थी, जो experiences मुझे मिले हैं, that has made me the person who I am today। So if you tell me if I could go back in time as an 18-year-old and मुझे अगर बोलता बोलता कि कोई कि अरे मैं कुछ डिफरेंट करूं, तो एब्सोल्युटली नहीं, मैं वापस से शायद उसी जर्नी को जीना चाहूंगी, वही स्ट्रगल करना चाहूंगी। वैसी मुझे लगता है कि तभी मैं शायद ये जो आज इंसान इस जगह पर आपसे शायद ये बात कर पा रही हूँ, तभी कर पा रही हूँ। अगर शायद मुझे सब कुछ इजी मिल जाता तो मैं शायद आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं कर पाती। सो आई होप दैट आंसर्स। Thank you, ma'am. And I think we should end now. Yes, absolutely. Because there is no question from our participants. Okay. Yes. Now, ma'am, thank you so much for sharing your experience and valuable guidance with us today. On the behalf of our organization team, I would like to thank all the participants and also most thanks, ma'am, for you to join our webinar and guide and for sharing your experience to us. That will be very good for our future. And we hope this session has given a lot of clarity to our participants and they and made them for confidence towards building successful legal career. Thank you so much, ma'am, for joining us Thank you and so motivating us. much. Thank you so much. And I hope that after this session, अगर आप लोग थोड़ा भी अगर इंस्पायर हो पाए हैं, तो I will feel like this session has been successful. And I want to thank you, Payal. You've been a wonderful moderator. And thank you to Vidhi Ekta Singh as well. I wish you all the very best for your future endeavors. And thank you so much for having me. Thank you, ma'am. With this, we conclude today's webinar. Thank you, everyone, for joining us and have a All right. wonderful evening and great future ahead. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Take care.